Good morning to all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, so what we have did in the last lab, what the practical 5 is about? किसके बारे में था? HTTP server configuration. Okay, HTTP configuration. Okay, and before that, which practical we have done? Topologies. Okay. FTP also. Hmm? FTP configuration also. જોઈ લો કયો છે. Okay, so we have already performed the 5 practicals. The first practical was about the router command, right? CLI. So in that we have performed we have seen in the first practical. Second was about second cinematic. It was about, I think, networking commands, right? In the CMD we have performed many networking commands. Am I clearly audible to online students? Yes, ma'am. Okay. So the second practical was about the networking command. Third was email configuration, if I'm not wrong. એના પછી કયો નો થર્ડ કયો હતો? And fifth was HTTP server configuration, right? So we have already performed the 5 practicals. Today we will do about the DNS configuration because we have already discussed the DNS, right? So what is DNS? Okay, और उसका काम क्या होता है? Domain name to IP देंगे. Domain name to IP. Convert करना. Okay, it converts the domain name into an IP address. और क्या करता है? Okay, then what we have discussed in DNS? DNS में तो बहुत सारा डिस्कस किया था हमने. There are mainly 4 types of the DNS servers. First is DNS resolver, root server, TLD, TLD, authoritative domain name server. Okay, so what is the purpose of root DNS server? All the main IP addresses जो सारे reference के IP address show करते हैं. Okay, what else? root DNS से और क्या होता है? Let's say कि मैंने कोई डोमेन नेम सर्च किया तो रूट DNS क्या करता है? It will find the URL with the root, right? Let's say कि मैंने टाइप किया कि www.iit.com, so it will find my URL with the root. तो जो लास्ट में एक्सटेंशन होगा वो पहले वहां से पकड़ेगा कि ये जो URL है वो कहाँ से एंड होता है, right? Then it will filter all the URLs and go send that result to the TLD server. ठीक क्या करता है? डोमेन बाय किया है उस सर्वर का एड्रेस रिजॉल्वर को देगा. Okay. रिजॉल्वर और उस एड्रेस पे जाएगा और वहां से मैं वेब पेज देखूंगा. So in short we can say TLD gives an IP address of TLD gives an address of the authoritative DNS server, Yes. right? Then authoritative क्या करता है? ऑथोरिटी में रिजॉल्वर जो पेज चाहिए वो तो उसके पास कोड होगा तो मैं वो देगा.
ओके एड्रेस देगा। ओके, सो हम एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि ऑथोरिटेटिव DNS is the final DNS who converts the domain name into an IP address, राइट? लास्ट में जो मिलता है, लास्ट में जो पूरा रिजल्ट फिल्टर होके आता है सब DNS से, वो जाके ऑथोरिटेटिव DNS में जाके वो पूरा कंप्लीट होता है एंड वी गेट the IP address from the authoritative DNS server, right? So this is the hierarchy of the DNS. So we have already discussed about many examples that if the URL is ends with .com, .edu, .in, right? So how this servers, or we can say how these URLs are fetched from the hierarchy. So we have seen this. Then after we have seen the many generic domains, right? हमने generic domains कुछ देखे थे that ends with .org, .net, .edu, then .aero, AERO, .bees, राइट? सो कुछ एक्सटेंशन हम लोगों ने देखे थे जो पर्टिकुलर कोई पर्पस के लिए यूज किया जाता था, राइट? इफ वी से इफ इट एंड्स विद org तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इफ आई से द .edu तो कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा। .gov तो ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स होगी, राइट? तो उस हिसाब से जो डोमेन नेम है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, right? So we have seen many generic domains also. Then we have seen the country domains. So country domains में let's say कि if it ends with .in, so इंडिया की कोई वेबसाइट होगी, .ca है तो कनाडा की वेबसाइट होगी, .au है तो ऑस्ट्रेलिया की होगी, .fr है तो फ्रांस की होगी, right? So we have seen the generic domains, country domains, and many more things, right? Then after we have seen mainly two query, recursive query and iterative query. आपके क्लास में हो गया है शायद ये टॉपिक, है ना? तो DNS में हमने दो टाइप की क्वेरीज भी देखी थी, that is recursive and the iterative query, right? Then what we have seen, DNS records. So records क्या होते हैं? Okay, so we can say it's a distributed database, right? It's a distributed database storing the resource records, which mainly contains the four fields. जिसमें four fields होते हैं. First is name, second is value, third is type, and the fourth is TTL, right? But TTL की value हर बार fix नहीं होती, so हम वो directly mention नहीं कर सकते, right? So mainly it contains the four fields: name, value, type and TTL, right? अभी name और value क्या है? So we can say name and value totally depends on the type of the records we are using, right? हम ऐसा बोल सकते हैं. So name और value किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से टाइप का हम लोग रिसोर्स रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं. तो मेनली हमने कितने टाइप के रिसोर्स रिकॉर्ड्स देखे थे? Which are they? हाँ, पहला A, CNAME, NS, MX, राइट? तो हमने फोर टाइप्स के रिसोर्स रिकॉर्ड्स देखे थे. टाइप ए में क्या था? टाइप ए में नेम में होस्ट नेम आएगा, वैल्यू मैनेज आएगा. ओके ओके, इफ यू डोंट हैव, इफ यू आर नॉट रिवाइज्ड इट्स ओके, देख लेना एक बार पीपीटी में. सो वी कैन से कि नेम और वैल्यू की जो वी कैन से जो होती है पोजीशन, वो हर बार चेंज होगी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड्स वी आर यूजिंग, राइट? कुछ जगह पे नेम पे डोमेन नेम आता है, कुछ जगह पे नेम पे होस्ट नेम आता है, कुछ जगह पे नेम पे आईपी एड्रेस भी होगा, राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स on the type of the resource records we are using, right? So that we have seen in the DNS records. So this is all about the DNS that we have already discussed in the theory lectures, right? So today we will start with the practical of the DNS. So first of all, open the Cisco packet tracer.
So open the Cisco packet tracer first. Bipin, why are you not here today? Ma'am, there will be a problem, so I have not come at college. Okay. So I hope so you will do the practical whatever we are doing today. Shema? Yes, ma'am, I will try. Okay, so today we will perform the practical of the DNS server.
स्टूडेंट स्टूडेंट डाल दो। ओके, सो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ। Is my screen visible to online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So as you can see here, I have taken 3 pieces, one switch and one server. Now first of all, I'll give this server name as a DNS server, right? अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 पीसेस लिए है, एक स्विच ली है और एक सर्वर लिया है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं पहले कनेक्ट कर दूंगी। राइट, मैंने यहाँ पे पहले कनेक्शन दे दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द आईपी एड्रेस, बट बिफोर गिविंग द आईपी एड्रेस आई विल जस्ट प्लेस द नोट ओवर हियर, जस्ट टू वी कैन से कि एक वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने ये डिवाइस में यही आईपी एड्रेस दिया है। राइट, सो जैसे हम हर बार करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव एन आईपी एड्रेस एट द आउटर साइड, so 192.168.1.1. Then I'll give an IP address to all the PCs, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, right? अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, I'll just give an internal configuration. So just click on the server, go to the desktop, IP configuration. Now I'll give an IP address over here. So 192.168.1.1 क्या है, इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने, पता चला, मिस्टेक यही होती है। So that's why we are giving an outer configuration as well. सबनेट मास्क ऐसे ही हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमको डीएनएस सर्वर सेट करना होगा। राइट, सो यहाँ पे डीएनएस सर्वर, द सेम एड्रेस विल बी देयर, 192.168.1.1। क्लोज दिस। अब यहाँ भी आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे टू ऑल द पीसीज। So desktop IP configuration 192.168.1.2 और DNS सर्वर यहाँ पे देना पड़ेगा 192.168.1.1. Close this. Same for all the PCs. Desktop IP configuration 192.168. कौन सा था, 1.3, 192.168.1.1. सेम फॉर दिस पीसी, नहीं यहाँ पे नहीं होगा। देन आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या था, 192.168.1.4, राइट, एंड डीएनएस एड्रेस, डीएनएस सर्वर 192.168.1.1, राइट। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लेट्स से कि अगर मुझे यहाँ पे डोमेन नेम पे सर्च करना है, डोमेन नेम से अगर मैं कोई आईडी सर्च कर रही हूँ, राइट, सो मुझे क्या होना चाहिए कि वो वेब पेज डिस्प्ले होना चाहिए। राइट, लास्ट टाइम हमने क्या किया था HTTP से कि हमने आईपी एड्रेस डाला था और वो पेज वेब पेज डिस्प्ले हो रहा था, बट इन दिस केस मुझे यहाँ पे डोमेन नेम से सर्च करना है। डोमेन नेम क्या होता है, लेट्स से कि www.marwadiuniversity.ac.in, तो मैं ऐसा डोमेन नेम लिख के सर्च करता हूँ, मुझे वो उसका वेब पेज दिखना चाहिए। राइट, लास्ट टाइम हमने आईपी एड्रेस से सर्च किया था, बट अभी सब वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस तो हमें याद नहीं रहेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉन्फ़िगर द डीएनएस सर्वर फर्स्ट। पहले मुझे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डीएनएस की सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द सर्वर सर्विसेज, यू कैन सी हियर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज ओवर हियर। राइट, सो यहाँ पे हमको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, सो गो टू द डीएनएस। अभी यहाँ पे मुझे लिखना है कि मुझे कौन सा डोमेन नेम चाहिए। राइट,
तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई डोमेन नेम सेट कर रही हूँ, लेट्स से www.cisco.com, राइट। करो जी, क्या पूरा कर दी तू, बहुत आवड़ो तू। तो यहाँ पे पहले मैंने डोमेन नेम सेट किया, फिर यहाँ पे क्या करूंगी, आईपी एड्रेस दूंगी, राइट। सो आईपी एड्रेस वी ऑल नो दैट वी हैव सेट द डोमेन नेम सर्वर, उसका आईपी एड्रेस मैंने सेट कर दिया है, राइट। सो सेम आईपी एड्रेस आई विल पुट ओवर हियर 192.168.1.1, राइट। वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया था, राइट। सो आई विल ऐड दिस एंड आई विल ऑन द सर्विसेज एज वेल, राइट। यहाँ पे मैं उसकी सर्विसेज भी ऑन कर दूंगी। तो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, अभी यहाँ पे मुझे वेब पेज एक्सेस करना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, index.html में कुछ चेंज करूंगी तो ही मुझे पता चलेगा कि डोमेन नेम से कुछ चेंज हुआ है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट remove all the content and I'll just write welcome to AMU and click on the save button, right। Now I'll go to any of this one PC, कोई भी PC में जाके मैं वहां से वो वेब पेज एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं वो मैं देखूंगी। So I'll write on the web browser www.cisco.com, it works, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, डोमेन नेम सर्च करके वेब पेज को डिस्प्ले करवाया। लास्ट टाइम क्या किया था, आईपी एड्रेस डाल के हमने वेब पेज को डिस्प्ले करवाया था। अभी हमने डोमेन नेम से सर्च करना है, फॉर दैट वी नीड टू सेट द डोमेन नेम। तो पहले मैंने डोमेन नेम को सेट किया, फिर जाके मैंने वेब पेज को डिस्प्ले करवाया। तो ये हो सकता है, इजी है। सर्विसेज में जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज होगी, राइट। तो यू कैन सी हियर जो हमने टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स वहां पे पढ़े थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे होंगे, राइट। SOA कुछ नया है, पता नहीं कुछ नया आया होगा, बट यहाँ पे हमने ये, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। सो ACNAME NS ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड्स हमने पढ़े, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वही रखना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे नेम की जगह पे हमें डोमेन नेम सेट करना है और एड्रेस में उसका आईपी एड्रेस, देन वी नीड टू क्लिक ऑन ऐड बटन और फिर हो जाएगा। बाकी सारी प्रोसीजर वही की वही है, जो DNS में हमने दिया है वही सर्वर का हो जाएगा। यस, ओके। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। राउटर छेद नहीं किया है, किसी ने सेनी साथ कनेक्ट कर रहा। So is it clear to online students? Please acknowledge me in the chat box. Manav, Riddhi, Aditya, Devansh, Girish.
हेलो मैम, Yes. मेरे में एरर आ रही है कि होस्ट नेम अनरिजॉल्व्ड। Host name अनरिजॉल्व्ड। दिखाओ। हाँ क्लोज दिस। सर्वर पे जाओ विधि। यस मैम। गो टू द DNS। और HTTP में जाओ। वहां पे आपने index.html आपने मॉडिफाई की है। यस मैम। ओके। गो टू दी सर्वर IP एड्रेस। सर्वर के IP एड्रेस दिखाओ। DNS सर्वर में क्या डाला है आपने? कुछ नहीं है सर। तो क्या होगा वहां, क्या डालना पड़ेगा? अब फिर से ट्राई करो। वही एरर आ रही है। हाँ अभी PC के सारे दिखाओ मुझे IP एड्रेसेस। आपने डिफॉल्ट गेटवे डाला है डियर, आपको DNS सर्वर डालना है। ओके, हर जगह वही मिस्टेक होगी। मैं हाँ कर लूँगी। हाँ। थैंक यू मैम। Okay, one more thing. I am sharing a tutorial format with you all in the Google Classroom. I hope you all have joined that. Right? So वहां पे मैं एक format share कर रही हूँ. Just look at that format and according to that you need to prepare for practical number 1 and 6. Right? अभी 1 to 6 practicals हो गया है. I hope you all have a screenshots for the same. Right? आपने अपने काम रफ में ऑलरेडी स्टोर किया हुआ रखा होगा। राइट? अगर नहीं किया है तो अभी बनाना स्टार्ट कर दो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपको CCNA कोर्स में कितना हुआ है, यू नीड टू शो मी दिस स्टेटस टुडे बाय शेयरिंग योर स्क्रीन। ऑफलाइन स्टूडेंट्स मुझे यहाँ बताएंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल शेयर देयर स्क्रीन कि कितना बाकी है और कितना हुआ है। राइट? सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल आई विल आस्क individually to share their screen about the status of CCNA course. Yes.
Sorry, How to make changes on site? how to? Make change on the site. You have to go to the HTTP, then go to the index.html, and then you can see the option of edit. दिख रहा है? Done? Good. Yes, obviously you need to take a screenshot for the same. Yes. आउटपुट का लेना है स्क्रीनशॉट या प्रैक्टिकल? मीन्स पूरे प्रैक्टिकल का नहीं लेना है। यहाँ पे इन केस ऑफ दिस यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट कि जहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है वो, और जो आपने डीएनएस कॉन्फ़िगर किया है वो वाला टैब। सेम उसी तरह एचटीटीपी में भी ऐसा ही होगा। जो आपने एचटीटीपी का सर्वर कॉन्फ़िगर किया है वो, उसका स्क्रीनशॉट, और जो आउटपुट आया है वो। विधि हो गया आपका? Yes, ma'am. ओके, गुड। Okay, so check your Google Classroom.
I have shared one format. Riddhi, share your screen. If you are getting such error, share your screen. आदित्य, आपको कहाँ पे एरर आ रही है? हैं? क्लास कोड पे क्लास मॉनिटर रुको एक मिनट। रिद्धि, आईपी एड्रेस से क्यों कर रहे हो? डोमेन नेम से करना है। डोमेन नेम क्या सेट किया है? Okay, close this, go to the server. IP एड्रेस दिखाओ। कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे आपने। सर्वर को पहले आईपी एड्रेस दे दो रिद्धि, राइट, एंड डीएनएस सर्वर भी देना है। तो 192.168.1.1, क्लिक ऑन टैब बटन। हाँ, अब डीएनएस सर्वर दे दो। अभी सर्विसेज में जाओ, वहां पे डीएनएस में जाओ। ओके, यू हैव ऑलरेडी गिवन दिस। अब फिर से ट्राई करो, होता है कि नहीं पीसी में जाके। Ma'am, she doesn't Yeah. on the DNS. आपने डीएनएस ऑन DNS is किया still है? off. रिद्धि, एक बार डीएनएस ऑन करके बाद में ट्राई करो। ऑन कर दो। अब वेब ब्राउजर में जाके करो। मुझे पीसी के आईपी एड्रेस दिखाओ। ओके, सर्वर में जाओ। सर्वर 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 गो टू दी http index.html। वहां पे कुछ आपने चेंज किया है या फिर सब निकाल दिया है? ओके, go to the DNS once again। Okay, close this।
डोमेन यहाँ से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट आई होप सो कि वहां पे जो तुमने डोमेन सेट किया है वही डोमेन यहाँ पे टाइप कर रही हो ना। वहां पे वो एरर कौन सी आ रही थी? डू यू वांट टू डिलीट, क्या आ रहा था वो? वो जब मैं ओपन करती हूँ ना तब वो मतलब डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन पूछता है इसीलिए। पर ऐसा क्यों पूछते हैं? ऐसा नहीं आना लाइक चाहिए फाइल ना। पे क्लिक हो जाता है ना इसीलिए। कैन बी डिलीट दिस मैम? हाँ, करके एक बार रिमूव करके फिर से ऑन करके देखो। सिलेक्ट करना होगा। अब फिर से करके देखो। ऐड ऐड। आना तो चाहिए। पीसी के कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ एक बार। यस मैम। तुम जो पीसी से एक्सेस कर रही हो उसके कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ। यहाँ पे देखो, तुमने आईपी एड्रेस और डीएनएस सर्वर दोनों सेम दिया है रिद्धि। सेम नहीं होता है यहाँ पे। मेक श्योर योर आईपी एड्रेसेस आर करेक्ट। ओके मैम। दूसरे पीसी के लिए चेक कर दो, तुमने दोनों के सेम दिए हैं तो चेंज कर दो। नहीं, बाकी सबके डिफरेंट। ओके, दूसरा वाला दिखाओ पीसी। अब फिर से ट्राई करो वेब ब्राउजर से। www.cisco.com डॉट लिखा था बीच में। यस मैम। इट शुड वर्क। ओके रिद्धि, जस्ट डू वन थिंग। आप एक काम करो, सिर्फ एक ही पीसी और एक सर्वर को लेके करो। यहाँ पे हमने ज्यादा पीसी रखे हैं, तो यू जस्ट डू वन थिंग। जो बाकी के दो पीसी को हटा दो और फिर से सारे कॉन्फ़िगरेशंस करके देखो, राइट? Okay, एंड मेक श्योर कि पीसी का जो आईपी एड्रेस आपने दिया है और डीएनएस का दे रहे हो वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, तो एक Yes, वो छोटा कॉन्फ़िगरेशन करके देखो कि वर्क करता है। अगर वो वर्क करेगा तो ये सारे पीसी के लिए वर्क करेगा। ओके। ओके आदित्य, आपका हो गया? Yes, ma'am. आप में क्या एरर आ रही थी? Actually, ma'am, I'm not doing a wrong in IP configuration at the server. सॉरी। I am doing a wrong configuration of IP in server. ओके ओके, नाउ इट्स डन, राइट? Yes, ma'am, now it's done. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? गिरीश, यस मैम। हैव यू डन? मैम बस हो ही गया मैम, लास्ट स्टेप पे ही हूँ। ओके ओके, टेक योर टाइम। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? वो हજી જોઈન નથી થયો? મીટિંગમાં જોઈન છો અત્યારે?
I'm sharing a Google Classroom code in the chat box. Those who have not joined, please join it right now. जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया है गूगल क्लासरूम वो भी ज्वाइन कर लो. आई कैन सी हियर 54 स्टूडेंट्स. यहाँ पे सिर्फ 54 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हुए हैं. So join the Google Classroom right now. वैशाली आप ज्वाइन हुए हो उसमें, तो ज्वाइन हो जाओ. जस्ट शेयर दैट लिंक विथ वैशाली. ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है मीटिंग में, तुम शेयर कर दो कोड. Yes, have you done the practical? Okay. आप CCNA स्टार्ट करो. CCNA में कितना बाकी है आपका? एक चैप्टर हुआ है, बाकी के सारे बाकी है. स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. आज 9th डेट है. यू हैव ओनली 15 से तो एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो तब तो होगा नहीं, तो आपको इस वीक में ही खत्म करना होगा, राइट, बिफोर सैटरडे. तो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. 11 चैप्टर्स है, तो अभी आपको 10 चैप्टर्स करने हैं. ठीक है. स्मृति आपका कितना हुआ है? 1 चैप्टर बाकी है. बाकी सब बाकी है. 10 चैप्टर्स बाकी है, तो स्टार्ट करो, अभी ही स्टार्ट कर दो. वैशाली आपका 3 चैप्टर्स कंप्लीट. एग्जाम भी हो गई तीनों चैप्टर्स की. ओके, सो स्टार्ट डूइंग दिस CCNA कोर्स. इसमें एक्सेस हो सकता है. राज आपका 3 तक की सब एग्जाम कंप्लीट है और 7 तक क्विज कंप्लीट. 7 तक क्विज कंप्लीट है, 3 तक एग्जाम. ओके, सो हो जाएगा इस वीक में. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, right? And make sure that you score at least 75% in the exam. Otherwise, certificate won't be generated. वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ तो ये कोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. तो एग्जाम देते हो तब थोड़ा ख्याल रखना कि एग्जाम एटलीस्ट 75% स्कोर हो जाए. Okay, so those who have just completed 1 or 2 chapters in this CCNA, just start doing that course. You have only 4 days to complete that course, right? आज 9th डेट है, यानी कि 13th डेट को आपकी, या 13th या 14th डेट को आपकी फाइनल एग्जाम ऑन होगी, और वो सिर्फ एक ही दिन के लिए होगी, राइट? या तो 14th या तो 15th, सॉरी, या तो 13th या तो 14th. अगर एक दिन में आपने कंप्लीट नहीं किया, एग्जाम वॉन्ट बी रीएक्टिवेटेड, राइट? सो आपके मार्क्स जाएंगे. तो बिफोर फाइनल एग्जाम्स आई एक्सपेक्ट कि आप सारे चैप्टर्स खत्म कर दो, राइट? अभी हमारा ये लैब का प्रैक्टिकल तो हो चुका है. नाउ यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द CCNA बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो अभी मैं थोड़ी देर में 1 by 1 फॉलो अप लेना स्टार्ट करती हूँ. तब तक आप लोग अपना CCNA का कोर्स कंटिन्यू रखो, राइट? आई विल आस्क एनीवन टू शेयर देयर स्क्रीन. क्लास नोट फॉर्म कैसा आ रहा है? क्या क्लास नोट फॉर्म ऐसा तो कैसे होगा? इट्स ऑलरेडी देयर. हम मेल मीनिंग क्यों जो अर्जन करन रहेगा इन थोड़ी समझ जाए मैं जॉब क्या रे? અત્યારે કોઈ પહેલા જ કરી મેલ તો મોકલ્યું છે તો પછી લિંક બદલે તો એનામાંથી ટ્રાય કરી એના માઇન્ડમાં આવે પાસમાં क्लास तो 6
હજી એક વખત ટ્રાય કરી લઉં, ફરીથી લિંક પેસ્ટ કરે. B4CP JLP. ક્યું? એ જ છે, અને કેટલા બધા જોઈન પણ થઈ ગયા છે. તો 6, 7 તો છે, તું ઊંધું ટાઈપ કરતો હશે કઈક. कुछ भी राज. हाँ वो वीकेंड में ही होगी आदित्य, मंडे टू फ्राइडे में नहीं होगी. आइदर इट विल बी ऑन सैटरडे और इट विल बी ऑन संडे, so don't worry on that part. वो सैटरडे या फिर संडे को ही एक्टिवेट होगी, रेगुलर डेज में मंडे टू फ्राइडे में नहीं होगी. क्या? क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है? आपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाया है? ओके, तब तक तो आपको अपने मोबाइल फोन से यूज करना होगा, क्योंकि क्या पीसी स्टार्ट कर दो, पीसी में होगा एक्सेस. वैशाली पीसी में हो रहा है नेट एक्सेस, फोन में से कर रहे हो? पीसी में तो होना चाहिए. वो 91192 वाला लिंक खोल के देखो, सोनिक वॉल वाला होगा पीसी में. थ्री टू सिक्स कौन से है? अच्छा, थर्ड में टोपोलॉजीज है. तो टोपोलॉजीज में आपको जब पैकेट ट्रेस होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड देन डेस्टिनेशन टू सोर्स, तो यू हैव नोटिस कि वहां पे एक टिक मार्क आता है. सो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट टिक मार्क कि पैकेट ट्रेस होके वो सक्सेसफुली ट्रेस हो रहा है, राइट. सो वो टिक मार्क वाला एक स्क्रीनशॉट लेना है इन द टोपोलॉजीज, और एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन का एक स्क्रीनशॉट, राइट. तो 4 टोपोलॉजीज इंप्लीमेंट की है, तो चारों के एक एक जो टिक वाले स्क्रीनशॉट्स आएंगे, एक एक होगा वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन वाला स्क्रीनशॉट होगा इन केस ऑफ टोपोलॉजीज. ईमेल सर्वर में आपने जो मेल किया है और दूसरी साइड वो सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, ऐसे 2 स्क्रीनशॉट्स आपको बाजू बाजू में रख के एक्सप्लेन करना है, राइट. दैट आई हैव कंपोज्ड अ मेल फ्रॉम PC1 and it has been received at host B by the PC2, right.
तो वो दोनों स्क्रीनशॉट्स लेके आपको रखना है इन दी मेल कॉन्फ़िगरेशन। 5 एंड 6 में मैंने जैसे बताया, एक आउटपुट का स्क्रीनशॉट होगा, राइट, और एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन का। एचटीटीपी सर्वर है तो उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस सर्वर है तो उसका एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीनशॉट का, ठीक है। और वो एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं रखने हैं। Practical 3, that is about what? थर्ड है वो टोपोलॉजीज का है ना? नहीं, मैंने जो फॉर्मेट शेयर किया है उसमें थर्ड कौन सा है? हाँ, टोपोलॉजी वाला है ना? तो टोपोलॉजी में मैंने जैसे बताया वैसे करना है आदित्य। No, ma'am. Actually, email. So, क्या? practical 4, ma'am. प्रैक्टिकल 4 कौन सा है? ईमेल वाला? Yes, ma'am. हाँ, तो मैंने उसमें बताया ना, जो दो पीसी के बीच में मेल ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों के स्क्रीनशॉट रखने हैं आपको, एक कंपोज वाला, एक रिसीव्ड वाला। Okay, ma'am. यस, શેના માટે? અત્યારે જ જવું છે? લેક્ચર લેબ પૂરી થાય પછી જાજો. ઓકે, પૂછી લ્યો. સર ફ્રી છે કે નહીં પેલા એ પૂછજો. તું એક જ પૂછીને આવ સ્મૃતિ.
हो रहा है सिस्को की क्विज। तो आप रजिस्टर कब करवाओगे? आज याद रख के करवा लेना, अभी स्टार्ट कर दो। उसके बाद ही आप फाइनल दे पाओगे।
રાજ એમાં શું કરે છે? હમ હમ
કોનો ફોન વાગે છે? Excuse me, ma'am. Hello. Hello. કેમ? मैम अभी हमको सीसीएनए का कोर्स करना है कि एना आगे माटे? प्रैक्टिकल करना है? હા જાઓ. કેટલી વારમાં પાછા આવશો? ઓકે. Chapter 6. अभी जो एक्टिवेटेड है रिद्धि, जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट. ठीक है.
जो लोगों की क्विज और एग्जाम हो गई है, दे कैन स्टार्ट डूइंग दी प्रैक्टिकल। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी शेयर कर दिया है, यू कैन जस्ट पेस्ट योर प्रैक्टिकल ओवर देयर। हाँ, अभी वही करना है। कौन सा आता है? बाकी कौन से आते हैं? फर्स्ट प्रैक्टिकल में थे तुम? ट्राई करो। सेकंड जो अभी आते हैं वो पहले कंप्लीट करो, राइट। घर जाके अगर नहीं पता है तो वीडियोस देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे पूछ लेना।
બોલા તમે ક્વેશ્ચન કેવાના સેકન્ડ યુનિટ મેં ક્લાસમાં આપ્યા અમારી ક્લાસ તમે કીધું સીસી બનવા એક ચેપ્ટર ના તો આપ્યા મેં. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હા, સેકન્ડ ચેપ્ટર ના આપીશ. આજે આપીશ.
Okay, Bipin, have you done the practical? हाँ मैम, कॉलेज आया ना अभी, लैपटॉप बंद, मैं जा रहा हूँ। क्या कॉलेज? कॉलेज आया हूँ मैं, हाँ तो प्रैक्टिकल घर से किया कि निकलूँ। नहीं वो पूछ रही। आपकी जो वो किए अभी नहीं की। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बिपिन।
लास्ट आपकी लैब में जब मैं था ना, वो मेरी थी। म्यूट क्यों कर रहे हो? Okay, Yashang, Yes, ma'am. have you done the practical? Yes, ma'am. Okay, Manav, Vidhi has done, Devansh, Girish, Rohan, Yes, ma'am. okay, have you done the practical? Aditya Yes, has ma'am. done. Okay. Okay, so I expect ki all of you have done this practical which we have did today. Okay, so time for attendance. विधि आपके सारे चैप्टर्स हो गए CCNA के Yes, ma'am. with exams? Yes. Okay, good. Okay, good. CCNA is completed. I'm also done with CCNA course. Okay, good, good. 3 students have already completed the CCNA course. So it's good.
Okay, 1, 2, Devansh, Present, ma'am. 4, Yes, ma'am. 5, Dipen, Dipen is not there. 6, 7, 57, 58, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69. Tushar is there. 71. Pathik is not there. 1. D2D1. 2, 3, 4. वासु मतलब वो एक लड़का आ रहा है वही ना? 5. कुणाल जोशी, वो अभी तक नहीं आया है, आउटस्टेट में से है. 6. Okay, so I'm sharing my screen. Check these numbers. बिग डेटा, ये तो एआई के स्टूडेंट्स है ना? बिग डेटा की बाकी. ओके, जस्ट वेट. हाँ, बिग डेटा की मुझे दिख नहीं रही है. मैम बिग डेटा 11. हाँ हाँ, बिग डेटा की ले रही हूँ, रुको 1 मिनट. यहाँ आपकी अटेंडेंस नहीं दिख रही थी, इसलिए मैप कर रही हूँ पहले. एक मिनट. हाँ, ओके. बिग डेटा स्टूडेंट्स 1, 2, Yes, ma'am. 2 is there. 3, absent. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 7, Josh Virani absent. 8, absent. 9, absent. 10, मैम 10 है, उसका मैसेज है, उसका नेटवर्क चला गया. okay. 11 is there. 12,
Absent. Absent, yes, sir. 13. Absent. Okay, so only 5 students are present in big data. Okay, so you may leave the session. Yes.